on from external point are always equal. to a circle are always equal. This you should remember, bache. How many times I have to tell you? Now py is equal to yc. This is common. One more thing that you can see. There are only two things right now. I need one more thing. What you can see in these two triangles? See, OP will be equal to OC because these are nothing but radius, right? That makes sense. Both are radius. Now we have a S, we have another S, we have another S. So by SSS congruency rule, triangle POY will be congruent to triangle COY. But sir, we didn't have to prove that. We have to prove that angle B, sorry, it is angle AOB. This angle AOB is 90. So why are we proving this? See, अगर हम prove करते हैं इसको, तो what will happen now? You can take that this angle is equal to this angle. And let's observe angle POY will be equal to angle YOC by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Once two triangles are proved congruent, you can name any two things of the congruent triangles as equal. Now, similarly, these two will be congruent. You won't have to prove it. Just say similarly, triangle BOC will be congruent to triangle BOQ, right? If that is the case, then angle COB will be equal to angle BOQ. Angle COB will be equal to angle BOQ. Again by CPCT BOQ. Now why are we doing this? See, if I now add, let's name it 1. Okay, not name it 1. Let's do one thing. Let's add all these 4 parts. 1, 2, 3, 4. Okay, let's add all the angles. If I add all the angles, okay, if I add all the angles, angle POY plus angle COY plus angle BOC plus angle BOQ. This whole angle will be a semicircle that is linear pair. Okay, that is 180 degree linear pair. Now we need angle AOB. We need angle AOB as 90, right? This we have to prove. Now you have to convert this thing into AOB. Now see, AOB is comprised, this AOB, let me take a different color. This AOB guy is made up of two angles. That is this AOC or YOC, whatever you like to. Achha, we named it YOC. Let's name it COA instead. COA. यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे COA. Y तो बाहर की तरफ है ना पॉइंट. COA. YOC की जगह COA. ओके, इसको भी POY नहीं, इसको हम बोलेंगे POA. ओके, क्योंकि Y जो है हमारा बाहर एक लाइन सेगमेंट है, हमें तो A की तरफ चाहिए ना. A POA. और कहीं हमने कुछ करा हो OY नहीं होगा बच्चे, OA होगा. ठीक है, I'm making some corrections here. This will be OA common. This will be PA is equal to PA is equal to AC. Okay, so Y नहीं लेंगे, Y बाहर की तरफ जा रहा है यहाँ पे कहीं, A ये अपन. That's why. तो अब देखो, अगर मैं इसको भी POY की जगह क्या कर दूँ, A कर दूँ बच्चे. So if I observe AOB किस किस से बना है, देखोगे AOB बना है AOC से और BOC से. मतलब हमें इन सबको AOB, AOC और BOC में तोड़ना है. AOC और BOC किसी तरीके से मिल जाए तो वो एंगल AOB बनता है. देखो, अब AOC या फिर COA एक ही बात है. ये हमारा POA बराबर है COA के, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एंगल COA फ्रॉम फर्स्ट, राइट. और ऐसे अगर मैं देखूं तो BOQ मेरा बराबर है COB के. BOC और COB एक ही बात है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ BOC से. तो 2 टाइम्स हो गया एंगल COA या फिर AOC, जो भी बोलना चाहो, और ये 2 टाइम्स हो गया एंगल BOC जो हमें चाहिए था. अब 2 कॉमन निकला तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC. ये 2 इधर जाके इसको काट देगा और क्या आ जाएगा 90, और इन दोनों को 90 मिलके क्या बनता है, एंगल AOB बनता है. एंगल AOC. तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. हाँ सॉरी AOB.
एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। हमारे पास ऐसा डायग्राम था, हमें प्रूव करना था कि एंगल AOB 90 है। तो हमने क्या करा, पहले एक कंस्ट्रक्शन करा जॉइन AOC, देन वी, तुम दोनों एक्सप्लेन करोगे मुझे, इसलिए लिसन वेरी केयरफुली। नाउ व्हाट we did congruency in these two triangles. In these two triangles I can see that OA is common, and PA will be equal to AC, the second theorem. Then OP will be OC because both are radius, all these are radius in a circle, these are called radius, right? So SSS say dono triangle congruent. If they are congruent, then by CPCT you can say this angle is equal to this angle. So we proved it because later on we will be using it. Again, what we did, we don't have to prove it, we can use similarly. This triangle will be congruent to this triangle right here will be congruent to this triangle. In CPCT used this angle will be equal to this angle, that is angle BOC or COB will be equal to angle BOQ by CPCT of course. Now what we did, we added all the four angles, and they will be 180 degree because that of linear pair. Now we observe, in order to get AOB I need AOC plus BOC because that will comprise to make AOB in the diagram. So we converted everything into that. POA is equal to COA, AOC and COA is the same thing. Now BOC, I need BOC, I won't change it. BOQ can be converted into COB और BOC एक ही बात है. So twice common निकल गया and we got AOB then. So this is proved. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. So let's see if you can explain. First, Aditya, you will explain, then Jatin will explain. Let's see who explains better. पहले तुम बताओगे क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, उसके बाद सॉल्यूशन समझाओगे मुझे. सर हमको सर फिगर 10.13 दे रखा है. उसमें XY एंड XY माइनस XY are two parallel tangent. मुझे बस ये बता प्रूव क्या करना है. जस्ट टेल मी व्हाट वी हैव टू प्रूव. सब प्रूव में सर एंगल AOB 90 डिग्री प्रूव करना है. ठीक है, गुड. देन तो सर हमने सब प्रूव किया. सर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमने टू प्रूव लिखा सर एंगल AOB टू 90 डिग्री. कंस्ट्रक्ट किया हमने ज्वाइन O को C से. फिर सर हमने सर इन ट्राइंगल POY एज ट्राइंगल COY. तो सर हमारा AO OA और OA कॉमन हो गया सर हमारा. और सर PA और AC सर हमारा थ्योरम 10.2 का हो गया सर. द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सर्कल एंड ऑलवेज इक्वल. राइट. सर रेडियस सर OP इक्वल टू OC. दोनों बराबर क्यों है? OP इक्वल टू OC बराबर क्यों है सर? OP इक्वल टू OC बराबर क्यों है सर? ये पार्ट ऑफ सर्कल में है बच्चे, ये रेडियस है. OP और OC देखो ना ध्यान से, क्या है दोनों, क्या है सर? रेडियस. तो इसलिए दोनों बराबर हैं. रेडियस सारे बराबर होंगे ना. तो सर ये साइड हो गए बाय साइड. और फिर सर हमने ट्रायंगल POA इक्वल टू सर ट्रायंगल COA. और फिर सर ट्रायंगल POA इक्वल टू ट्रायंगल COA सर बाय CPCT. ट्रायंगल और एंगल बाय CPCT. एंगल POA is equal to angle COA. COA बाय CPCT सर हमने निकाल लिया था. अब सर फिर ट्रायंगल BOC देन ट्रायंगल BOQ. और फिर सर हमने फिर एंगल COB इक्वल टू एंगल BOQ. सर ये भी सर हमने बाय CPCT सर हमने निकाल लिया है. फिर क्या किया हमने? फिर सर हमने सर POA, फिर जो हमने सब ऊपर जितना लिखा था ना सर, हमने फिर इसको एक साथ ऐड किया है. एंगल POA प्लस एंगल COA 180 के बराबर क्यों हुआ? BOC प्लस क्यों सर 180 के बराबर क्यों हुआ? चारों सर ये लीनियर पेयर में है सर. गुड सर लीनियर पेयर. हमें प्रूव क्या करना था अब? सर ये सर एंगल AOB से 90 डिग्री प्रूफ करना था. हाँ, तो अब हमने क्या किया फिर चारों का सम करके 180? फिर सर हमने चारों को सम करके फिर हमने ट्वाइस में
सर हमारे सर दो हमको LOC मिल गए, दो हमको एंगल BOC मिल गए सर 180 डिग्री दो में। कैसे मिल गए? यहाँ तो सर एक ही है। सर दो कैसे मिल गए? ये COA कैसे बन गया POA? ये POA COA कैसे बन गया? और ऐसे ये BOQ BOC कैसे बन गया? सर ये लीनियर पेयर में है लीनियर ना पेयर तो सर। सम होता है, सर इक्वल कैसे बना? प्लस माइनस। क्या कहते, प्रूव क्या किया था? ये किस लिए किया? ये सारा जमेला कॉन्वेंसी वाला इधर देखना। क्यों किया? ताकि POA COA मिल जाए। मिला नहीं मिला? और BOQ ये BOC सर लिख दे। इसलिए तो करा है ये सारा जमेला, ताकि ये जमेला ट्वाइस हो पाए। फिर सामने आया? यस सर। ठीक है, नहीं आया तो पूछ सकता है अभी भी। गुड, अच्छा समझाया तुमने। यस जतिन, इट्स योर टर्न नाउ। समझाओ, देखते हैं तुम कैसे समझाते हो। भैया इसमें प्रूव करना है एंगल AOB 90 डिग्री है। फिर भैया हमने पहले ज्वाइन कर लिया कंस्ट्रक्शन से OC। भैया फिर ट्रायंगल POY एंड CO, ट्रायंगल COY में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी। तो OA इज इक्वल टू OA कॉमन, PA इज इक्वल टू AC टेंजेंट थ्योरम 10.2। और भैया OP इज इक्वल टू OC, ये भी हो गए वाई? रेडियस ऑफ द सर्कल। गुड। भैया फिर ऐसे साइड बाय साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी। और भैया फिर एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA CPCT से प्रूव हो गया। और भैया इसी तरह दूसरा ट्रायंगल भी, ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू ट्रायंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और फिर एंगल COB इज इक्वल टू BOQ बाय CPCT। भैया फिर चारों एंगल ऐड कर दिए। तो भैया उनका सम 180 था लीनियर पेयर से। तो भैया 2 से कॉमन हो गए। कैसे कॉमन कॉमन हो गए भाई? ट्वाट ये POA COA कैसे बना? भैया एंगल POA COA के इक्वल है कैसे है? CPCT। गुड, ठीक है, दैट वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। So question number 9 clear है दोनों को, I guess, right? You are able to explain it. That means it is clear to you both, right? Aditya and Jatin. So let's move to the 10th question then. Let's see if we can do this 10th question as well. So prove that the angle between the two tangents from an external point of a circle is supplemented to the angle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact in the center. पहले तो समझने नहीं आता, कौन समझना पड़ेगा पहले क्या। सबसे पहले सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ एंगल्स इज 180, ओके। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90, ये तो पहले समझना। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from external point, मतलब हमने कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया है, वहां से दो टेंजेंट बनाया है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है, ओके, to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो सेंटर में ज्वाइन कर रहा है उसके साथ ही सप्लीमेंट्री होता है। मतलब हमें प्रूव करना है इन दोनों का जोड़ जो है 180 है। द सम ऑफ दीज टू एंगल्स शुड बी 180, दैट वी हैव टू प्रूव। So the most important thing is we don't know how to draw the diagram by reading the statement. So let me repeat it again. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point, obviously this is an external point, to a circle is supplementary. Okay, we will prove that it is having the sum of 180 to the angle subtended. Subtended means make, banana. Subtended means banana, by the line segment joining the points of contact at the center. Point of contact to the center. Yes, diagram clear or not? Yes, is the diagram clear? Yeah. See, I repeated 2 times. If there is any doubt, you can ask me, because if you are able to draw a diagram, the solution is very easy. The diagram making is difficult in this question, okay? So you can ask me again and again. So let's prove it. What we have to prove? Yes, what we have to prove? What we have to prove? Angle subtended
by the line segment joining points of a contact at You're this. reading the statement. We have to prove that angle, let's name it 1, let's name it 2. Angle 1 plus angle 2 is 180 degree. Okay. That the angles of between the tangents and this is supplemented. That means the sum is 180 degree. Is it okay? Yes. Book में लिख लो side में, ठीक है? Clear? Shall we go for the solution then? Yeah. Okay. Let's see. So how will we prove this? Very easy, the easiest one of the exercise. Now see, can you tell me why this angle will be 90 degree first of all? This angle 3 will be 90 degree. Why? We're perpendicular. Why? Why this angle 3 is 90 degree? See, but there are only two theorems. Even in two theorems, you have to like think, I don't know what you will do then. There are only two theorems. The one says that if we have a circle and there is a tangent, then radius will be perpendicular to tangent. The other one says that the length of the tangents will be equal. Is there any kind of problem? When I say 90, it obviously will be the first one. The length of it, the tangents ke perpendicular hota radius. The radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact. Do you remember it? Where BC is equal to CD. BC is equal to CD. Yes, BC is equal to CD. No, BC is equal to CD क्यों होगा? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं बोल रहा हूँ एंगल 390 क्यों होगा? Because of theorem 10.1. That is, this is a radius. The tangent drawn at any point of a circle is perpendicular radius to the point of contact. Remember? Yes. Did you guys get it? Okay, this is 90. Similarly, this angle, let's name it 4. Angle 4 will be 90 as well. Can you tell me why? Yes. Yeah, same reason. Okay. Now let's add all the angles. What's the sum of all the 4 angles here? It's quadrilateral. 360. 360. Good. Is it 360? Sum of all the angles of a quadrilateral is 360. All angles of a quadrilateral is 360. Okay, that's the scene. Now we need to prove angle 1 plus angle 2 is equal to 180. How can we do that? Yes. What I will do? I will not remove this. Angle 3 has a value of 90 degree. I can plug it in, right? So if 180 is subtracted from 360, what we will get? 180 degree. 180. And hence, so 180. this is how easy it is. I'm repeating again. We need to prove that angle 1 plus angle 2 is 180 degree. And angle 3 will be 90 because of theorem 10.1. Radius is always perpendicular to tangent. Angle 4 will be 90, radius is always perpendicular to tangent. We took the sum of all the 4 angles. It is 360. We plug in the values of 3 and 4 and got the proof. Yes, this time Jatin will explain me this. Yes, Jatin, what we have to prove and the solution. We have proved करना है angle 1 plus 2 is equal to 180 degree है. Can you tell me the statement से तुमने diagram कैसे बनाया? Can you try to explain me that? use that annotate feature और इस diagram के ऊपर पेन चलाना नहीं है, ऊपर बस दिखाओ मुझे. एक सेकंड. Take your time. आदित्य, you have to do it too. तो देख लो पहले ये कर रहा है जतिन. ये पहले तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. बनाओ मत, बस ऐसे ऊपर चला के ऐसे दिखाओ मेरे को. बनाओ मत. नहीं तो just show me what you're doing. हाँ, हम टेंजेंट बना लिए. अभी वो पॉइंट सेंटर से अभी उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 180 डिग्री जो होता है. Read the question and as you read the question, tell me what are you doing in the diagram. Read करो जरा question. करो read. I will help you out. Don't worry. भैया समझ जाता आगे. वे एक सेकंड. I know. अगर तुम देखो समझा पाओगे दूसरे को, तुम कभी नहीं भूलोगे. ओके, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन रीड करो, साथ ही साथ मुझे डायग्राम बताओ कैसे बना रहे. पढ़ो जरा पढ़ो. वे सर्कल बनाने के बाद 2 टेंजेंट ड्रॉन करेंगे. उन दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा जो 180 डिग्री होता है.
किससे सप्लीमेंट्री होगा? जो भैया लाइन सेगमेंट बाहर जा रही ए वाली, ए बी और ए डी। ये वाले जो बना रहे हैं एंगल 1 और ये दोनों लाइन सेगमेंट जो बना रहे हैं एंगल 2, इससे सप्लीमेंट्री होगा, है ना? तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूफ समझाओ जरा। प्रूफ में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना था। और भी एंगल 3 90 डिग्री हो गया और एंगल 4 भी। थ्योरम 10.1, द टेंजेंट ऑफ सर्कल is always perpendicular to radius through the point of contact. उसके बाद फिर ये सबको ऐड कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब या फिर एंगल 3 और 4 90 डिग्री थे तो 180 हो गए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। जैसा आदित्य, योर टर्न नाउ। एक्सप्लेन मुझे क्या प्रूव करना है और कैसे कराना है। सर हमें प्रूफ द एंगल बिटवीन हमको सर टू टेंजेंट एंगल ड्रॉ करना है सर, जो पॉइंट ऑफ द सर्कल होंगे और जो सर उसको सप्लीमेंट हो जो 180 डिग्री होगा सर, उसको सबटेंडेड बाय एंगल सेगमेंट से ज्वाइन करना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सेंटर पे। सर हमको सर प्रूफ करना सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सर हमको फिर प्रूफ करना है एंगल 3 हमने सर 90 डिग्री लिया है सर, जो थ्योरम 10.1 है। और सर हमने एंगल 4 से 90 डिग्री लिया है। एंगल 4 90 डिग्री है, जो सर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to radius through the point of contact. हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कुछ हमारा 360 डिग्री है। सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल इज 360। सर एंगल 3 एंगल 4 हमारा सर 90 डिग्री है। तो हमने सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 360 डिग्री सर हुआ है। तो सर हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू सर 180 डिग्री, क्योंकि हमने सर सब्ट्रैक्ट किया सर 360 डिग्री को। ठीक है। So that was question number 10. Let's move to question number 11. Okay. Question number 11. नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा मतलब परसों जो होगा सर्कल का टेस्ट होगा, क्योंकि आज होपफुली चैप्टर खत्म होगा। अगर नहीं भी होगा, जितने क्वेश्चंस होंगे उसका टेस्ट होगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 2 ही एक्सरसाइज में, ज्यादा कुछ है नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैराग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ rhombus. पैराग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, दैट मींस एक पैराग्राम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब उसकी बाउंड्रीज को टच करके ऐसे कर रहा है, कवर कर रहा है पूरा। तो ये इसका डायग्राम होगा। सामने आया कैसे बना डायग्राम? पैराग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, तो हमें प्रूव करना है ये जो पैराग्राम है ये एक्चुअली पैराग्राम नहीं, ये रोम्बस है, ये प्रूव करना है। ठीक है, सो गिवन है हमें, अभी तक ये गिवन है कि एबीसीडी इज अ पैराग्राम, इज अ पैराग्राम। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि इट इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस, राइट। अब रोम्बस क्या होता है भाई बताओ, पढ़ा है कभी रोम्बस? हाँ भैया। क्या होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी, क्या होती है? कल वो उसके स्क्वायर के इक्वल होती है उसकी सारी प्रॉपर्टी। Rhombus is a paragram with all 4 sides equal, kind of, right? With अगर चारों साइड बराबर हो जाती हैं तो क्या कहलाता है? राइट, चारों साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो कहलाता है रोम्बस, राइट। अब पैराग्राम है, 4 साइड और इक्वल हो जाए तो ये रोम्बस हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे? सही हो गया। तो अब जो है हम कैसे करेंगे इसे, देखो सबसे पहले पैराग्राम है, अगर पैराग्राम है तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, दैट आई नो। तो सबसे पहले वही ले लेते हैं, देखें उससे कुछ फायदा होता है। हमें वैसे क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि चारों साइड बराबर है, राइट। लेकिन ए बी इक्वल टू सी डी तो होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, गिवन है पैराग्राम है, पैराग्राम आर इक्वल।
और ऐसे ही हमारा AD किसके बराबर होगा, AD बराबर होगा BC के, सेम रीजन। इतना तो हमें पता चलता है। अब देखो और क्या हम पता कर सकते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इनको कुछ नाम दे देते हैं, P जो टच कर रहे हैं PQRS। ये वाला पॉइंट इसके बराबर होगा, ये लाइन, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। तुम लोग बताओगे क्यों? ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। क्यों भाई, क्यों बराबर होगी? कौन सा थ्योरम? भैया कौन सी लाइन एक बार दोबारा बता दो। PD हमारा DS के बराबर, मैंने बना भी रखे डैश, CP CQ के बराबर, BQ BR के बराबर और AR AS के बराबर। क्यों होंगे? सर थ्योरम से 10.1 होगा। 10.1 होगा। 10.1 में कुछ इक्वालिटी होती है? आटा पड़ेगा। सर क्या होता है 10.1 थ्योरम? सर्कल जो सर, हाँ सर, जो टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कहाँ दिख रहा है इसमें रेडियस परपेंडिकुलर? कुछ दिख रहा है परपेंडिकुलर? नो सर। फिर थ्योरम 10.2 से होगा। 10.2 कैसे लगाया बताओ मुझे। भैया टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यहाँ से देखो टेंजेंट बन रहा है इस सर्कल पे, तो ये दोनों के लेंथ इक्वल है। ऐसे देखो अगर देखना चाह रहे हो तो, ये देखो बन रहा है नहीं बन रहा? ऐसे इधर भी देखो, थोड़ा भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये इसके बराबर, ऐसे ये देखो ये इसके बराबर, ऐसे ये वाला ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो होंगे नहीं होंगे बराबर? समझ आ रहा है? यस सर नो? ठीक है, तो थ्योरम 10.2 होगा भाई। सिंपल लॉजिक है। दो थ्योरम है, तुम लोग उनको अप्लाई करना नहीं सीख पा रहे। एक में 90 डिग्री होता है, एक में लेंथ इक्वल होता है। अब लेंथ इक्वल हो रही है, ऑब्वियसली 10.2 होगा। इतना तो थोड़ा कॉमन सेंस रखना है हमें। चलो देखो अब कैसे प्रूव करें चारों साइड बराबर। देखो भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये जो DP है, पहले लिख लेते हैं, DP किसके बराबर होगा? DS के। PC किसके बराबर होगा? PC बराबर होगा CQ के। AR किसके बराबर होगा? AR बराबर होगा AS के। और BR किसके बराबर होगा? BR बराबर होगा CQ के। रीजन क्या है इसका? रीजन वही थ्योरम 10.2 डाल दो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अच्छा अब क्या करेंगे देखो, 1 2 3 4 एडिंग 1 to 4, एडिंग 1 to 4। तो अगर मैं ऐड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, PC प्लस AR प्लस BR इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस AS प्लस CQ, राइट। तो अब करेंगे इनको ऐड, तो देखो DP प्लस PC क्या बन रहा है? DC बन रहा है, राइट। और AR प्लस BR क्या बन रहा है? AB बन रहा है। ऐसे अगर अगर इधर देखोगे DS और AS ये दोनों बन रहे हैं AD। CQ और BQ क्या बन रहा है? CQ और यहाँ पे BQ होगा ना? CC। हाँ, ये कैसे हो गया? रुको एक सेकंड। PC CQ के इक्वल और BR BQ के इक्वल है। तो यहाँ पे BQ, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? BC आ जाएगा। अब देखो अब मैं क्या करूं, देखो मेरे पास BC प्लस AB इक्वल टू ये आ गया, लेकिन हमें तो चारों साइड बराबर चाहिए थी। अगर मैं किसी तरीके से ऐसे ले आऊं, साइड वाली बराबर ले आऊं, क्योंकि अपोजिट वाली तो बराबर है, साइड वाली तो बात बन सकती है। तो अगर मैं AB है यहाँ पे, ठीक है, CD DC और CD एक ही बात है, इसके जगह अगर मैं AB डाल दूं, है ना, AB डाल देते हैं इसके जगह AB, ऊपर से यहाँ से फर्स्ट से, या फिर इसको फिफ्थ, जो भी नाम देना चाहो, ठीक है। तो AB डाल दिया और यहाँ पे AB रखा। मेरे को साइड वाला चाहिए ना, तो AB के साइड वाला क्या है? AD है, BC भी है, तो तुम कैसे भी डालो, AD को BC लिख दो, है ना। AD को हम लिख देते हैं BC प्लस BC, तो ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ AB और ट्वाइस ऑफ BC। 2 से 2 कट जाएगा, तो AB आ गया BC के इक्वल। अब देखो इजी कितना हो जाएगा ये। अगर मेरी साइड वाली चीजें बराबर आ गई, AB BC के बराबर है, ठीक है, और मुझे पता है AB जो है अपोजिट साइड के भी बराबर है CD के, है ना, और मुझे पता है कि BC जो है AD के भी बराबर है, BC जो है AD के बराबर है। इन तीनों स्टेटमेंट से तुम बोल सकते हो कि चारों बराबर है। क्यों? AB BC के बराबर है, AB CD के, मतलब BC CD के बराबर है, राइट। AB BC के बराबर है, BC AD का, मतलब AB AD के बराबर। इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि चारों साइड क्या हो गई? बराबर। तो इसलिए वो क्या प्रूव हो जाएगा? दैट ABCD इज अ
rhombus. द रोम्बस। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं जो तुम लोग गलती करते हो बहुत, ये वाली चीज, ये लेना, ये मैंने कैसे लिया, तुम्हें अपोजिट ही लेना है, दिस बाय दिस ही लेना है, मतलब ऐसे तोड़ोगे, dp इज इक्वल टू ds, ठीक है, फिर pc इज इक्वल टू cq, ऐसे नहीं ले सकते तुम कि dp इज इक्वल टू ds फिर कोई भी उठा लिया, मान लो ये उठा लिया, cq इज इक्वल टू cp, होगा क्या, फिर ऐड नहीं हो पाएगा LHS साइड, ये मैंने पहले ही बताया वाला कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही LHS तरफ आप क्या लोगे, AR लोगे, AR किसकी तरफ होगा, AS के इक्वल, और फिर BR ही लोगे, तुम ये नहीं ले सकते BQ, क्योंकि LHS में AR और BQ ऐड नहीं होंगे। आर यू पीपल गेटिंग, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा नो? हाँ भैया। ठीक है, अब इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा DC प्लस AB मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, DC को AB से रिप्लेस कर दिया ऊपर से, और यहाँ पे AD को BC से रिप्लेस कर दिया ऊपर से, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, ट्वाइस बना, साइड वाली चीजें बराबर में, वन साइड वाले, अगर हमें देखो, अगर मेरे पास कोई चीज ऐसा है जिसमें अपोजिट बराबर है, अगर मैं किसी तरीके से साइड वाला भी बराबर कर दूं तो चारों बराबर हो जाएंगे एक्चुअली, तो इसलिए मैंने साइड वाला बराबर किया, AB इक्वल टू BC, ये गिवन था, इन तीनों से पता चलता है कि हमारा क्या AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD एंड ABC इक्वल टू rhombus, ठीक है, यू कैन नेम द 5 6 and 7 from 5 6 and 7, right? yes, clear हुआ ये? Yeah sir. चलो तो कौन समझाएगा पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो भाई जतिन, पहले तुम्हारी बारी, फिर आदित्य की बारी। ठीक है भैया, प्रूफ करना है इसमें कि ABCD ये रोम्बस है, और भैया रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, दे क्या रखा है? गिवन भैया ABCD से पैरेललोग्राम, गुड, उसके बाद भैया इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिर P इक्वल टू DS, PC इक्वल टू CQ, AR ये सारे इक्वल टू, क्यों बराबर हैं ये सारे? भैया थ्योरम 10.2, ठीक है, गुड, देन फिर क्या किया हमने? भैया फिर ऐड कर दी इक्वेशन, उससे भैया क्या फिर फायदा हुआ? बेस से एंगल वो निकल गए साइड्स, फिर जैसे DP इक्वल टू PC करा तो फिर DC निकल गया, AR DP इक्वल टू प्लस BR, PC से मिला है DC, DP और PC को जब जोड़ेंगे तो DC मिलेगा ना, इन सबको इसलिए जोड़ा हमने। हाँ भैया, फिर भैया फिर DC AB कैसे बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे AD BC कैसे बन गया? क्या भैया, ये DC AB कैसे बना बच्चे बाद में, और ऐसे AD BC कैसे बना? ये थ्योरम 10.2 पर दे तो रखा है, इससे, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे तुम DC AB बना सको, DC AB कैसे बना? भैया एक सेकंड देख के बताना, देखो, स्टार्टिंग में भैया कुछ किया था इसके लिए? ये थ्योरम 10.2 वो तो 10.1 से, ठीक है, वो तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इससे तो कुछ मिल नहीं रहा, इससे तो DC AB के बराबर, ये तो तुमने मिला के ये सब बना दिए, अब इसके बाद पूछ रहा हूँ मैं कि DC AB कैसे बना और AD BC कैसे बना? यहाँ पे कुछ दिख रहा है जो करा था स्टार्टिंग में, अपोजिट साइड्स? साइड्स इक्वल हाँ, हो गया, उससे कैसे मिलेगा? DC किसके बराबर होगा? AB, तो फिर क्यों करा था अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम? इसलिए तो किया था ताकि बाद में कभी यूज हो तो यूज कर सकूं। लो यहाँ पे डाल देता हूँ यूजिंग, इसको नाम दे दो कुछ भी, 1 डैश 2 डैश जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो ये यूज हो करके फिर ट्वाइस हो गया, साइड वाली बराबर हो गई, और फिर हमने ऊपर वाला रिजल्ट फिर से लिखा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, फिर चारों साइड इससे बराबर हो गए, और ये क्या प्रूव हो गया, रोम्बस। क्लियर? यस और नो? हाँ भैया, ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 11 तक ही दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइम, ठीक है, 12 और 13 में करवाऊंगा लेटर ऑन, ठीक है, 11 तक टेस्ट होगा परसों, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से पहले। चलो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। भैया मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ? नहीं तू एक्सप्लेन कर, तो टेस्ट में एक्सप्लेन करिए।